Hi everyone, good evening. Hope you guys can see me and hear me clearly. Welcome Yash, welcome Spursh. I guess some of you, I think I've seen Yash before. I believe I've seen Spursh before as well. Not very sure of that. But the main agenda in these classes is that we discuss some LRDI sets. Some sets which I believe are of a wide variety. None of these sets, तो मैंने अभी तक जो 15 क्लासेस कंडक्ट की हैं, दिस इज क्लास नंबर 16, सब में मैं अलग अलग सेट करता जा रहा हूँ. मेरा गोल है कि एग्जाम के पहले मैं टोटल 25 क्लासेस कर लूं. उन 25 क्लासों में मैं रफली 60 to 70 सेट्स कवर कर लूं. दैट्स व्हाट माय टारगेट इज. एंड इफ someone just downloads all the PDFs and goes through all of these sets, he will be set for CAT 2021. That's the goal, that's the agenda that I'm working with. That's why I pick up different sets in all of them. Hi Priyanka. Or another thing that I do with these sets is many times I ask students to send me the sets that are troubling them. So it's not necessary that all of these sets are the ones which you should attempt in the exam or not. For example, I will try to cover 4 sets today. Let's see if I'm able to do all of them or not. But these 4 sets were sent to me by 4 students. I don't know उनमें से, I don't think कि कोई भी क्लास में है, but that's the benefit of Unacademy. You can always watch the recording again. Amitesh sent us the first set. The second set was sent to me by Anshuk. The third set that we will do today was sent to me by Praveen. And the fourth set that we will do today, that was sent to me by Ashutosh. If you want to send me your sets, you can do that as well. My mail ID is hkfdoubt@gmail.com. आप लोग भी, you can just go ahead and send me your sets and I will cover them up. For those of you who might be attending my class for the first time, my name is Ravi Handa. I have been teaching for CAT for 15 years. Which is after that I started my own website and recently I joined Unacademy. In case you want to know which class of mine is happening where, I would recommend that you can go ahead and join my Telegram group at t.me/catprep online. Over and above that, there are multiple courses that I teach on Unacademy. They are a part of the Plus courses as well as they are a part of the Iconic ones. In the Plus courses, you get live classes, very similar to this one, but you get them in a particular structure, and this structure helps you plan your preparation better, helps you prepare better. Over and above that, if you want some sort of a personalized guidance, then you can go in for the Iconic plan as well, where there will be experts who will guide you on how to plan your prep. Thanks, Persh. Not my idea. Actually, that idea, to give credit where it's due, was thanks to Twinkle in our team, who decided that, okay, we can do this sort of a multi-streaming part. My recommendation, if you're looking at CAT 21, you can go in for the 6-month plan, which is for 16,400. And in case you're looking for CAT 22, then you can go in for the Iconic plan, which is for 39,500, 12-month plan. In both of them, you can use the coupon code HANDA, which will get you a 10% off. So that's pretty much it. I will start off with the questions. Unless you guys have any questions about preparation as to how to prepare for this or how to prepare for that. If there is anything like that, please let me know. I'll try and answer your queries via chat. If not, give me a thumbs up and I'll start off with the LRDI sets that I have planned for today. I have 4 DILR sets planned for today in roughly hour and a half. 1.5 घंटे का टाइम है, 4 सेट्स हैं, हो गए तो ठीक है, वरना 3 तो हो ही जाएंगे. That much I am confident of. यश मैं मिस कर गया, let me just check. Can you cover maximum minimum DI question in future videos? Obviously I can. यश वैसे जहां तक मैक्सिमम मिनिमा की बात है, आई थिंक कल या परसों मैंने अपने YouTube चैनल पे एक क्लास ली थी
I did cover the maxima minima DI questions in that. Another thing is, Yash, if there is a question that you have in mind, just send it to me on hkfdoubt@gmail.com. I'll pick it up in the next class. And if you mail me, what I'll ensure is whenever I'm taking that next class, I'll mail you the link and the timing and everything as well. So that in case you're not able to attend, you can, at least watch the recording of the same. I think let's begin. So, in this question, we are given a student appears for a management exam. Guys, if at any point of time you believe I'm going too fast, please let me know via chat. If you believe I'm going too slow, that's okay. It's better for the people who are not up to your level or not up to your pace. A student appears for a management exam, which is conducted in a multiple choice format. The exam has 5 sections: English, Quant, Verbal, GA, and LRDI. The table shows the points that are scored by the candidates in each of the sections. Note that some details are absent from the table. तो ये है हमारी टेबल. Total number of questions हमको यहाँ पे given है. Attempted questions, correct attempts, incorrect attempts, और this is essentially the total score. तो ये हम लोगों का स्टेटस है. इसमें से मैं कुछ इंफॉर्मेशन भर सकता हूं क्या? मैं टोटल कितना है वो भर सकता हूं. सो 50 + 60 + 70 + 80 + 80 कितना हो गए? 50 and 60 110, 110 and 80 190, 190 and 150. So 190 and 150 will be 340 will be my total number of questions. मैं कहीं भी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करूं, प्लीज पॉइंट आउट कर देना. उस वजह से सारे क्वेश्चंस पढ़ना गड़बड़ हो जाते हैं. ओके, व्हाट एल्स? वर्बल में 45 अटेम्प्ट किए हैं, 22 गलत हैं. देन हाउ मेनी विल बी करेक्ट? 23 विल बी करेक्ट. एनी अदर इंफॉर्मेशन? नॉट रियली. मेरे पास में दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव. Let's try and see if there are more conditions. For every correct answer, 5 marks are awarded. For every incorrect, 2 marks are deducted. 1 mark is for every unattempted problem. तो अब मैं इस टेबल को दोबारा एनालाइज करने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले तो मैं वर्बल का स्कोर निकाल लूंगा. भाई 45 अटेम्प्ट किए हैं, 23 करेक्ट हैं, तो उन 23 करेक्ट के they will get 115 marks, 5 marks per correct question here. 22 incorrect, so 44 will be deducted. And out of 80, he has attempted only 45 questions. So 35 are not attempted. So unka minus 35. So how much is this going to be? 115 minus 35 हुआ 80. 80 minus 44 हुआ 36. So 36 is going to be the score in verbal. Okay. Total marks scored in verbal is half of the marks of English section. तो यानी कि इंग्लिश में तुम्हारा स्कोर आया है 72. 120 कैसे आएगा? पता नहीं. मतलब बहुत सारे तरीके हैं यार, क्योंकि करेक्ट का तुमको 5 मिल रहा है, इनकरेक्ट का तुम्हारा -2 मिल रहा है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट हाउ यू कैन गेट अ पर्टिकुलर स्कोर, बट देयर माइट बी अदर कंडीशंस. विल यूज देम वंस वी गेट टू देम. सो टोटल इज फाइन. द नंबर ऑफ इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स इन जीके is 1/4 of his incorrect attempt in all the sections and is twice of that of English. So if the incorrect attempts in English is X, or rather is in English is X, तो GK में incorrect attempts are 2X and the total incorrect attempts are 8X, क्योंकि GK का जो है वो 1/4 है और English का वो double है. Okay. In all sections together, the total attempts are 260. So my total attempted questions are 260 and total marks scored is 660. इससे मेरा काफी फायदा हो जाएगा. देखो
I'm now going to focus only on the total score. So 260 questions are attempted. That means 340 minus 260, 80 were not attempted. So minus 80. What about correct and wrong? For every correct question, you'll get 2 points, 5 points. For every wrong answer, 2 marks will be deducted, and this is your total score, 660, which means 5C minus 2W is 740. We also know that correct plus total attempted questions is 260. So correct and wrong questions are a total of 260. So how can I solve this equation? Well, if correct and wrong is 260, if I double it, 2C, 2W will be 520. That means 7C इन दोनों को ऐड किया तो आया 1260. तो करेक्ट निकल जाएंगे मेरे. कितने निकलेंगे करेक्ट? 1 देन 56. तो करेक्ट आ गए 180. तो इससे मेरी काफी हेल्प हो गई कि करेक्ट आ गए 180, तो इनकरेक्ट आ गए 80. इनकरेक्ट अगर 80 आ गए तो ये आ गए 20, ये आ गया 10. Are you guys okay till here? Please give me a thumbs up if you're okay with all the values that I have written on the screen. ये values कैसे आई? How did I calculate it? Whatever equations that I've drawn, because only then I will proceed. If you're okay with all the values on the screen, if there is any value that please give me a thumbs up. If you're not okay with any of these values, please let me know via chat, ताकि उस value को मैं दोबारा explain कर सकूं. Yash is okay. बहुत ही कम लोगों के thumbs up आए. Maybe I don't know if it is disabled for you guys or something, but I'll assume because I don't really see any doubts, I will try to see the questions now, क्योंकि मैंने सारी conditions तो use कर ही ली हैं. Questions. Total marks by the candidate in English. इंग्लिश के अंदर टोटल मार्क्स मुझे निकालने हैं, वो तो मैंने निकाल लिया है, 72 है. टोटल मार्क्स डिडक्टेड इन क्वांट बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट. क्वांट में कितने इनकरेक्ट हैं पता नहीं, निकालना पड़ेगा. कैसे निकालूंगा मैं? व्हाट डू आई डू? यहां पे अब मैं अटका हुआ हूं. व्हाट डू आई डू? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट? Any idea, any suggestions? What should I focus on? Which value should I try to find out? How did we get for English? Yash, English का मुझे given था in one of the conditions, total marks in the verbal is half of English. तो verbal में हमने 36 निकाला था, तो English का double होगा 72. Incorrect attempts की अगर हम बात करें, the number of incorrect attempts in GK is twice of that in English. GK का 20 आया तो English का 10 आया. अब क्या करूं? What do I do now? क्वेश्चन तो मुझसे क्वांट के बारे में पूछ रहा है. क्वांट के बारे में तो मेरी पूरी टेबल ही खाली पड़ी है. किस चीज पे मैं फोकस करूं? क्या करोगे? पेपर में तुम इस लेवल पे हो, इतनी टेबल तुम्हारी भरी हुई है, सारी कंडीशंस तुम यूज कर चुके हो. What are you going to do now? Which part are you going to focus on? Anyone? जीके. ओके, चलो जीके के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं. जीके में टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 इनकरेक्ट हैं. तो अगर 70 क्वेश्चंस टोटल हैं और 20 इनकरेक्ट हैं, दैट मींस करेक्ट प्लस नॉट अटेम्प्टेड विल बी 50.
करेक्ट प्लस नॉट अटेम्प्टेड विल बी 50, क्योंकि टोटल 70 है, इनकरेक्ट जो है वो 20 है। स्कोर कितना आया मेरा 120। तो स्कोर के लिए मैं बोल सकता हूं 5 करेक्ट माइनस n, एक मार्क नॉट अटेम्प्ट का कटेगा, माइनस 2 इंटू 20, बिकॉज 2 मार्क्स कटते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, 20 इनकरेक्ट, एंड एज प्रिया इज सेइंग आई एम फोकसिंग ऑन द टोटल स्कोर। तो मैं प्रिया का आइडिया लगा के ये मैंने दूसरी इक्वेशन बना ली, अभिनव का आइडिया लगा के मैंने पहली इक्वेशन बना ली। अब बेसिकली ये जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 5c माइनस n इज इक्वल टू 120 प्लस 40, 160। नाउ आई विल ऐड द टू ऑफ देम, प्लस n माइनस n कट जाएगा तो 6c आ जाएगा 210, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 35। तो जीके में अगर c की वैल्यू आ गई 35, मैंने करेक्ट किए हैं 35, दैट मीन्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं 55 और 15 मेरे नॉट अटेम्प्टेड हैं। मैं एक बार इसके टोटल को और चेक कर लेता हूं। 35 इंटू 5 175 माइनस 40 फॉर दीज 20 क्वेश्चंस माइनस 15 फॉर द क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट अटेम्प्टेड। हाँ, ये मेरा मैच कर रहा है, 120 आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, जीके का भी मेरी टेबल भर गई। ओके, अब क्या करूं? यश, अभिनव, प्रियंका, एनी आइडियाज, एनी सजेशंस? जीके का निकाल लिया, जीके की मेरी। इंग्लिश वी कैन डू नाउ। ओके यश, लेट्स ट्राई फॉर इंग्लिश। लेट्स ट्राई फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या है? इनकरेक्ट है 10, सो करेक्ट प्लस नॉट अटेम्प्टेड is total minus incorrect, which is 50 minus 10, which is 40. Score 5c minus n, और इनकरेक्ट के 20 मार्क कटेंगे, so minus 2 into 10, this is my total of 72, so this gives me 5c minus n is equal to 92। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, सो प्लस n माइनस n कट गया, बचा 6c, 40 और 92 हुआ 132, तो c कितना हुआ 12 एंड 12, तो c आ गया मेरा 22। तो करेक्ट आ गए मेरे 22, इनकरेक्ट थे 10, टोटल अटेम्प्ट हो गए 32, यानी कि नॉट अटेम्प्ट हो गए 18। इसके स्कोर को भी मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। 22 इंटू 5 110 माइनस 10 इंटू 2 सो 20 माइनस 18 नॉट अटेम्प्टेड। चलो जी, ये भी वैल्यू आ गई, काफी काम हो गया मेरा। क्वांट के निकल आए, क्वांट के कैसे निकला है? हाँ देखते हैं ना भाई। 180 मेरा टोटल है, 180 मेरे टोटल में से 22 और 23 45, 45 and 35 80, 80 and 50 130, तो ये 50 निकल आया, ये 8 निकल आया, ये निकालना था हमको। द टोटल मार्क्स डिडक्टेड बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस आए मेरे 8, तो टोटल मार्क्स डिडक्टेड विल बी 8 इंटू 2 or 16. Suppose the passing marks in all the sections of the test is 130. तो 130 से ज्यादा स्कोर किसमें है? वेल, इन तीनों में तो नहीं है। इसमें देखता हूं कितना आएगा। 250 for the correct attempts minus 16 for this and minus 2 for the not attempted question। क्वांट तो फोड़ दिया इस भाई साहब ने। सो 250 माइनस 18 इज 232। तो क्वांट में तो डेफिनेटली उसकी कट ऑफ क्लियर हुई है। एलआरडीआई का क्या करूं? अब मैं निकालना पड़ेगा एलआरडीआई का भी। सो लेट्स सी कितने इनकरेक्ट हैं। 22 और 8
22 और 8 30 और 10 40 और 20 60। तो 60 यहां पे 20 इनकरेक्ट हैं, तो 70 मैंने अटेम्प्ट किए होंगे। तो मेरा स्कोर कितना आएगा? 15 to 5 250 माइनस 20 into 2 40 और 10 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो यहां पे आएगा 200। So there are two subjects. There are two subjects in which he has scored more than 130. Those two subjects are quant and LR. Quant में कितना आया है? Quant में आया है 232. LRDI में कितना आया है? 200. LRDI में कितना है? 200. तो इन दोनों में he has cleared the cutoff in two of them. Are you guys okay with these values? Priyanka, Yash, everyone else? Okay. So, yahi tha, so is this a question you should attempt in the exam? Definitely yes. Because all of these values, you know, first of all, एक question तो तुम्हारा वैसे ही solve हो जा रहा था बिना मेहनत किए। बाकी दो के अंदर भी तुम्हें थोड़ी सी calculations करनी पड़ी, but I believe this is the level of calculations that you should do when you have 3 or 4 questions on a particular topic in the exam. Just a reminder, there are multiple batches that we are starting for 22 as well as for 21. इनको join करने के लिए you guys can use the plus plan, which is for 16,400, or the iconic plan for 1 year, which is for 39,500, depending upon कौन से exam को आप target कर रहे हो. And you can use the coupon code HANDA to get a 10% off on these. Let's try the next question. इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। There are 3 countries, A, B, and C. The total population is 1440. Population of B is 40% of the total population. तो A की तो मुझे पता नहीं कितना है, C की मुझे पता नहीं कितना है, but B is 40% of the total. That is 144 into 4. 144 into 4, 144 का डबल हुआ 288, 288 का डबल हुआ 576. ठीक है जी। Total number of females is 20% less than the number of males. तो मेल फीमेल का स्प्लिट कितना होगा इसमें, वो कैसे निकालू? How do I find that out? And given total is 1440, मेल्स कितने हैं पता नहीं, फीमेल्स कितनी हैं पता नहीं, but females are 80% of males. So, or 20% less than males, which is essentially 80% of males. Using this information, how do I actually find out the number of males and females here? What should I do? Shreya says it will be 800 males. How do you say that, Shreya? 800 males, तो 640 females बची। श्रेया तुम्हारा डेटा तो सही मैच कर रहा है, बट ये निकलेगा कैसे? See, to find this out, you assume that the males are 100x, so the females are 20% less, so they are 80x. So my total is 180x, which is 1440. So 144 by 18, 144 by 18 is 8. तो इसलिए मेरे मेल्स आ गए 800, फीमेल्स आ गई 640. Are you guys okay with the males and the females? Now, there are two kinds of people who play sports. There are two kinds of people, those who play sports and those who don't play sports. The number of males in A, B and C are all perfect squares. तो अब मैं मेल्स अगर देखता हूं, A, B
और सी में, इन तीनों को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा और टोटल 800 होना पड़ेगा। और इस मेल के अंदर भी there will be people who will play sports, there will be people who will not play sports. So इस 800 के अंदर भी there will be two categories, those who play sports and those who don't play sports. Okay? Number of men who do not play any sports in a country A is 45% of the total number of females who do not play any sports. So out of this 640, let's say 100x females don't play any sports, then in A, what is the split? A is 45x plus something. Please keep in mind this total should be a perfect square. The number of men who do not play any sports in country B is equal to 48% of the females. Okay. So B is 48x plus something. Once again, this should be a perfect square. These are the ones who don't play any sports. Okay. The difference between the number of males in C and the total number of females who do not play any sports is equal to 256. So C में जो males हैं, I don't know what that is, plus or minus, rather, let me put it this way. 100x is the number of females who don't play any sports, minus C males, the difference is 256. Always keep in mind that this value is a perfect square. Okay. The number of females in B is 50% of the total number of females. So total number of females is 640. So B में 320 females हैं. And A and C are equal. तो A और C में 160 females हैं. अब मेरा थोड़ा फायदा हो गया इससे. कैसे मेरा फायदा हो गया इससे? B में टोटल लोग कितने हैं? B में टोटल लोग हैं 576. 576 में से 320 इधर हैं. So this number is 256. So this does help me a little bit. And I think my conditions are over. अब मैं क्या करूं? What do I do? How do I proceed with this information? I know that all these three values are perfect squares. I know the number of females who don't play any sports. The difference with the number of females is 256. ये सारी information मेरे पास में है. But अब मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊं? What should be my next step? Any ideas, any suggestions? I will be happy to hear it. Anything that you can suggest? Pythagorean triplets, इतनी बड़ी values में यार वो दिक्कत आएगी श्रेया. See, because it is 256 and my total which is left, Pythagorean, which is the third perfect square? Value of A is a perfect square, value of C is a perfect square, but their sum is not a perfect square, na Shreya? What you are saying is, would have been valid if all three were perfect squares. No, these two are perfect squares, the third one is not. 800 minus 256, कितना होता है? 544? 544 is not a perfect square. तो उससे तो मेरा काम चलेगा नहीं. Let me give you a hint. Again, why does it have to be a perfect square? C males is a perfect square. 256 is a perfect square, that I agree. 100x perfect square है, ये क्या लिखा है? Shreya, you can't be sure of that. 100x is a perfect square, is not mentioned anywhere.
Let me give you a hint. Focus on this part. This should give you some idea. 45x and 48x. What can you derive from this? Ajay, your values are right, but I'm more interested in knowing the process. What can you derive from 45x and 48x? The point that I want you to understand from 45 and 48x, 45% of something is coming out as a number of people. 48% of something is coming out as a number of people. When will this happen? When will this happen? See, basically, मैंने अगर total को 100x माना है, so I want 45x to be a natural number, 48x to be a natural number. तो मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, बिकॉज यू नो 3 अगर जब तक डिनोमिनेटर में होगा तब तक चलेगा, 3/3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है. X could be not really an HCF, but HCF can come in the denominator. So X can be anything like this. But at the same point of time, 100x should also be a natural number. That means X cannot be a fraction. Which means I want, think about it this way, 45x, 48x and 100x. मुझे इन तीनों को नेचुरल नंबर बनाना है. ये तीनों का नेचुरल नंबर बनना तभी पॉसिबल है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर. And once you understand that x is a natural number, you know this particular value can only be 100, 200, 300, 400, 500 or 600, because there is a number of females who do not play any sport. अब देख लो, इसमें इन सब वैल्यूज में या तो 256 ऐड करो या 256 सब्ट्रैक्ट करो और एक परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है. You can add 256 to these values, you can subtract 256 from these values, but you need to get a perfect square. So, what value will you take? What value will you take? What value will you add or subtract? 400 and 144. She is absolutely right. मैं अगर 100x को 400 ले लेता हूं तो मेरा फीमेल्स 144 आ जाएगा. So, out of this 640, this comes out as 400 who don't play any sports, 240 play sports. Number of जैसे कहते हैं कि क्या हसी के जो मेल्स हैं वो आ गए 144. 48x will be 48 into 4. 48 into 4 कितना होता है? 192. 45x ये कितना होता है? 180. यहां पे टोटल है 400, तो 180 प्लस 220, यहां पे 56 प्लस 8 64. सी का स्प्लिट मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, मत पता होने दो, बट कम से कम मुझे इतना तो पता पड़ गया कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, क्या मेरा पूरा स्प्लिट है. अब जब मुझे इतना सब कुछ पता पड़ ही गया है तो मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूं. सी के स्पोर्ट्स या नॉट स्पोर्ट्स या टोटल के स्पोर्ट्स और नॉट स्पोर्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? नहीं, आई थिंक हम लोग सारी इंफॉर्मेशन यूज कर चुके हैं. चलो क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर कुछ होगा तो क्वेश्चन से फिर हम वापस आ जाएंगे, नहीं सॉल्व हुआ तो. हाउ मेनी मेन ऑफ ए प्ले स्पोर्ट्स? तो ए में 220 आर प्लेइंग स्पोर्ट्स. टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, 400 plus 160, 560.
it is known that the number of females who do not play any sports in A is 60% of the number of females who play sports in the same country. यानी कि अगर 10x स्पोर्ट्स खेलती हैं तो 6x स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं. दैट मीन्स माई टोटल इज 16x. तो ए में फीमेल्स पे जाते हैं 160. तो 160 में से कितनी खेलती हैं कितनी नहीं खेलती हैं? नो, who do not play sports is 60%. So not sports is 60. तो 100 sports, 60 not sports. Okay. It is also given that the number of females who play sport in B is 4 more than the number of females who play sports in C. Okay. तो मान लो B में स्पोर्ट्स खेलने वाली हैं x+4, तो C में स्पोर्ट्स खेलने वाली हैं x, तो मेरा हो गया टोटल हो गया 2x+4. टोटल मेरे स्पोर्ट खेलने वाले कितने लोग हैं? 240 हैं. उनमें से 100 तो ए में है, तो 240 में से 100 अगर ए में हैं तो कितने बचे? 140 बचे. तो 2x हो गया मेरा 136, 2x हो गया 136, तो x आ गया मेरा 68. तो C में 68 स्पोर्ट्स खेलते हैं और 92 स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं. बी में क्या स्प्लिट है? बी में x+4, तो 72 स्पोर्ट्स खेलते हैं. कितने बचे? 250 में से 2 हटा दो, 248 स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं. आर यू ओके विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए, बी एंड सी? फॉर द फीमेल्स का भी निकल गया, खाली अब एक ही क्वेश्चन बचा है, मतलब एक ही वैल्यू बची है. अब which of the following option best describes the number of people in C who do not play sport? तो C में स्पोर्ट नहीं खेलने वाले कितने लोग हैं? देखो 92 तो लड़कियां हैं जो कि नहीं खेलेंगी. 92 प्लस मेल्स जो नहीं खेलेंगे. मेल्स कितने नहीं खेलेंगे वो तो मुझे पता ही नहीं है. भाई ऐसा हो सकता है सारे के सारे खेलते हो, ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे नहीं खेलते हो. सो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 92 + 0 टू 92 + 144. यानी कि दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 92 टू 236. इस रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो मोर देन 92, लेस देन 236, more than 91 but less than 237, it will be 3. more than 91 यानी कि 92 हो सकता है, less than 237 यानी कि 236 हो सकता है. So it has to be between 91 and 237, both not included. That's why I'll get 92 and 236. Priyanka, I didn't understand your question. टोटल से चेक नहीं हो पाएगा. आई डिडंट गेट दैट. Why 92 + 144? Rajdeep, because definitely these 92 are not playing sports. Out of these 144, it is possible that 0 of them play sports. It is possible that all 144 of them play sports. We do not know. How are you going to split this 144? हमारे पास में इंफॉर्मेशन है ही नहीं. तो 92 जो फीमेल स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं वो तो मुझे पता है. बाकी 144 में से एक आदमी भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. मेल्स में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट नहीं खेलते हैं, इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है. दैट इज द रीजन व्हाई आई विल टेक द एंटायर रेंज, दैट इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 92 टू 92 + 144. कम से कम 0 ऐड होगा, ज्यादा से ज्यादा 144 ऐड होगा, and that is why we got 92 to 236 as the answer here.
इज दैट ओके? राजदीप एंड प्रियंका, प्रियंका मुझे अभी भी तुम्हारा डाउट समझ आया नहीं कि तुम क्या पूछना चाह रही थी. Maybe you could elaborate on it a little more and then I will be able to answer it a little bit better. I'll go ahead. If the governments of ABC respectively spend, sure now. Are you okay with the value of 160 for A? प्रियंका एक एक स्टेप करके चलते हैं. 100 और 60, are you okay with that, प्रियंका? Okay. Are you okay with 68 for C and 72 for B as the number of females who do not play any sports? 68 and 72 are the ones who play sports. Who play sports are 68 and 72. If 68 and 72 are those who play sports, तो इससे मेरे not playing sports भी निकल जाएंगे. 248 and 92. Are you okay till here? 248 and 92. Now, out of this 144, suppose X play no sports, then 144 minus X will play sports, which means total number of people C in playing who do not play sports will be 92 plus X. Now X की वैल्यू जो है वो 0 से 144 तक कुछ भी हो सकती है, और X की वैल्यू 0 से 144 तक कुछ भी हो सकती है. तो मेरे 92 प्लस X की वैल्यू, अगर मैं X को 0 लूंगा तो ये 92 आ गया, अगर मैं X को 144 लूंगा तो ये 236 आ गया. तो ये 92 से 236 तक वैल्यू कुछ भी हो सकती थी. दैट इज व्हाई आई टुक दिस एज द आंसर. इज दैट ओके नाउ, प्रियंका? अगला क्वेश्चन देखते हैं. If the government respectively spends 30, 35 and 40 on every female who plays sports and 35, 40 and 0 on every male who plays sports, then what is the ratio of the amount spent on females and males by the government? I think अब यार ये तो तुम मतलब इसमें तो जस्ट कैलकुलेट करना है, तुम लोग खुद ही निकाल सकते हो कि फीमेल्स के लिए 30, 35, 40 है. So 100 into 30 plus 72 into 35 plus 68 into 40. So you can एक सेकेंड कहां से निकालोगे, क्योंकि सी में तो मुझे पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं. Let me just quickly check this. So this will be 30 into 100 plus 35 into, इतना जल्दी अजय यू शुड नॉट जंप एट कंक्लूजन्स, मे बी कुछ कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा. 35 into 72 plus 40 into 68 divided by 35 into, मैं तो भूल ही गया कौन से थे खेलने वाले. 45% क्या थे? डू नॉट प्ले. अच्छा, तो ये तो 180 डू नॉट प्ले, 220 प्ले प्लस 40 into 64 प्लस 0 into X आ रहा है ना. देखो अजय, अगर तुम अभी यही ब्लाइंडली कि अच्छा हाँ उसमें मेरे को पता ही नहीं है और मैं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मार्क कर देता तो मैं गलत हो जाता, क्योंकि सी वाले 0 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं. वो एक आदमी पे कर रहे हैं या 50 आदमी पे कर रहे हैं, अगर वो 0 कर रहे हैं तो 0 into 50 भी 0 होता है, 0 into 1 भी 0 होता है. डज नॉट मेक अ डिफरेंस. सो दिस इज समथिंग आई बिलीव यू कैन कैलकुलेट. मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा. यू गाइस कैन टेक इट फ्रॉम हियर. जस्ट रिमाइंडर, मैं काफी सारी स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूं.
और मेरी जीके के ऊपर मैं स्पेशली ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि जो कैट 21 के एस्पिरेंट्स हैं, दे डोंट रियली बॉदर टू मच अबाउट जीके एंड दे शुड. सितंबर आ गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस जीके पढ़ते रहो, बट 1 to 2 hours a week you need to start giving to GK so that you can do decently in SAT and IIFT. And I take these classes on Wednesday at 5 p.m. So I would suggest and recommend that you guys please attend this class. Once again, if you want links of this particular class, or as a matter of fact, any of my special classes or the free classes that I take, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी. जैसे कि अभी तो मैं ये वाली ले रहा हूं, मस्ट डू एपिसोड. आई विल बी टेकिंग अनदर वन ऑन वेडनेसडे क्वांट के लिए, और फिर शाम को वेडनेसडे 5 बजे जीके के लिए. ओके, आई विल डू दैट. एक टीम है 5 प्लेयर्स की, ABCDE, and they participated in a tournament and they played 4 matches. ठीक है जी. The table gives us information about their scores. Okay, ये टेबल के अंदर मुझे सबके स्कोर्स पता है. Then each column has 2 values missing. सब में 2 वैल्यू मिसिंग है. These are the runs scored by the 2 lowest scorers in the match. That means ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये 60 से कम है. ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये 65 से कम है. ये दोनों वैल्यूज 20 से कम है, और ये दोनों वैल्यूज 52 से कम है. मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कितनी है, but these values are lesser than whatever is the lowest value which is actually written on the table. अब none of the values is more than 10% of the total score. यानी कि they can be less than or equal to less than or equal to 10% of whatever score is mentioned over there. Okay, चलो आगे देखते हैं. तो पहले मैच में 72 और 88, 160 और 60, तो 220. तो पहले मैच में 50 रन बाकी हैं. इन दोनों को मिला के 50 होना चाहिए. एंड इंडिविजुअली बोथ द वैल्यूज हैव टू बी लेस देन और इक्वल टू 27. ओके, इस केस में 75 and 65, that is a total of 140 and 100, 240, 300 में से 240 गया, तो इसमें 60 रन बाकी हैं. एंड बोथ ऑफ दोज वैल्यूज हैव टू बी लेस देन इक्वल टू 30. तो चलो मेरा यहां पे तो फायदा हो गया भाई. जैसे ये जो लेस देन इक्वल टू 27 पे मेरे को 50 बनाना है, तो ये तो मैं बहुत सारे तरीके से बना सकता हूं. 23 + 27 कर सकता हूं, 24 + 26 कर सकता हूं, 25 + 25 कर सकता हूं. ऑल्सो कौन सा वाला 26, कौन सा वाला 24, वो डिसीजन भी ले सकता हूं. तो बहुत सारी चॉइसेस थी मैच 1 के लिए. मैच 2 के लिए मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है. झक मार के इन दोनों को 30-30 होना पड़ेगा. डू यू गाइस एग्री विद दिस? That both of them will have to be 30-30 each, because there is no choice, so to say, which is left. Match 3, 110 + 98, 208. तो ये है 32 and less than or equal to 24. हाँ, बट एक चीज का और इसमें ध्यान रखो कि यहां मेरा जो स्कोर है 20 को मेंशन कर रखा है. यानी कि बाकी जो स्कोर्स हैं वो सारे के सारे 20 से कम है. अब ये स्कोर्स अगर 20 से कम है और मुझे टोटल बनाना है 32, तो मैं क्या बना सकता हूं? 13 + 19 बना सकता हूं, 14 + 18 बना सकता हूं, 15 + 17 बना सकता हूं,
16 + 16 बना सकता हूं। ये मैच 1 की चॉइसेस हो गई, ये मैच 3 की चॉइसेस हो गई, और मैं जब ये चॉइस बना रहा हूं तब मुझे 13 19 के अंदर ये भी नहीं पता है कि कौन सा 13 है और कौन सा 19 है। आई एम जस्ट मेकिंग ऑप्शंस फॉर यू। यहां पे क्या हो रहा है, 50 50 50 150, 6 2 3 11, तो 50 - 11 यहां पे होना चाहिए 39, and individually the values have to be less than equal to 20। 39 है, लेस देन इक्वल टू 20 करना है, तो ये वाली वैल्यूज गारंटीड 19 + 20 होंगी, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आई गाइस ओके विद दीज? जो भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है, 5 लोग थे, 5 लोग थे, 5 लोगों के अंदर अलग अलग उनके स्कोर्स हैं। किसी भी लोग आदमी के स्कोर के ऊपर 2 कंडीशन है। पहला, तो वो टॉप 3 लायक नहीं होना चाहिए, टॉप 3 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टॉप 3 के बराबर होता तो वो टेबल पे होता। कंडीशन नंबर 1, these runs are the lowest scored by the 2 lowest scorers in the match। सेकेंड कंडीशन है कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट 10% हो सकता है, 10% हो सकता है। Why is 50 less than 27? क्योंकि यहां पे टोटल 270 है, इसलिए लेस देन 27, टोटल 300 है, लेस देन इक्वल टू 30, टोटल 240 लेस देन 24, टोटल 200 लेस देन 20। These are my 10% values। Are you guys okay with these values? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। What is the maximum possible percentage contribution of Arpit in the total runs scored? तो पहली बात तो टोटल रन स्कोर्ड निकाल लो, कितना है, 270 + 300 + 200 500, 270 + 240 is 510, so my total is 1010, ये तो फिक्स्ड है। अब अर्पित का मुझे नहीं पता कि अर्पित का कितना होगा, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग मैक्सिमम पॉसिबल, सो लेट्स मैक्सिमाइज अर्पित। मैच 1 में अर्पित का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 27 हो सकता है। मैच 3 में अर्पित का मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैच 3 में अर्पित का मैक्सिमम 19 हो सकता है। तो अर्पित का टोटल कितना होगा, 27 और 53 हुआ 80, 80 और 19 हुआ 99, so the maximum that you can get is 199। अब 199 अगर 1000 में से होता तो 19.9 होता, but it is from 1010, so this will be 19.7। जो लोग पीपीटी डाउनलोड करेंगे उनके लिए मैं लिख दूं 27 plus, I hope you guys know that these PPTs become available for download later, plus 19 plus 53, and I'm dividing it by 270 plus 300 plus 240 plus 200. If the absolute difference between the total runs by Arpit and Chatur is the minimum possible, अच्छा, तो उन दोनों को मेरे को एकदम पास पास करना है, ठीक है जी। तो नाउ माय गोल इज अर्पित एंड चतुर शुड बी मिनिमम गैप। अब अर्पित और चतुर को मिनिमम गैप करना है, तो मैच 1 में तो मैं दोनों को बराबर कर दूंगा 25 एंड 25। मैच 3 में मैं क्या करूंगा भाई, मैच 3 में मैं कम से कम करूं या ज्यादा से ज्यादा करूं, Y16 भाई मेरा अभी तक टोटल कितना हो रहा है, 125 153, सो अभी तक मेरा टोटल है 188। इसका टोटल कितना है 110, सो इसका टोटल है 165। इसका टोटल है 165 प्लस 19 या 20,
So this guy is going to end up with 184 या 185. चतुर भाई, अर्पित और चतुर का गैप मुझे कम से कम करना है, तो इवन आई विल नॉट टेक दिस एज 25 and 25. आई थिंक रुक जाओ, I'll have to do a little bit more calculations in this. Arpit and Chatur, where are they currently? Arpit is at 153. Chatur is at 140. तो चतुर अभी पीछे है. ओके, एंड दोनों में दो मैचेस मिसिंग हैं. चतुर का एक मैच में तो मेरे को पक्का है कि 19 या 20 ही आएगा. So he is going to move up to 159 and 160. लास्ट वाले मैच में अगर इसका X आता है, so he is going to get 50 minus X. तो ये ऊपर है काफी, क्योंकि उस वाले मैच में इसको 13 से लेके 19 तक कुछ भी हो सकता है. तो मैं इसको मिनिमाइज अगर कर रहा हूं तो मैं इसको 13 करता हूं, एंड दूसरे वाले मैच में मैं इसको मिनिमाइज करके 23 करता हूं, इसको 27 करता हूं. तो मेरा चतुर का कितना हो गया? चतुर का हो गया मैक्सिमम आ गया 187, और इसका 150, 160, इसका आ गया 189. हाँ देखो, मैंने इसका मिनिमम किया है. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज फॉर अर्पित. अर्पित का मैच 3 में मिनिमम है 13, मैच 1 में मिनिमम है 23. चतुर का मैं मैक्सिमम करता जा रहा हूं. चतुर का अगर मैं मैक्सिमम करता हूं तो मैच 1 में आ रहा है उसका 27 एंड मैच 4 में उसका आ रहा है 20. तब भी इनके जो टोटल्स हैं, इवन देन अर्पित इज गेटिंग टू 189 एंड चतुर इज गेटिंग टू 187. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो. इसका ये मैक्सिमम है और इसका ये मिनिमम है. दिस इज द क्लोजेस्ट दैट दे कैन गेट टू एट अ गैप ऑफ 2. Do you guys agree with this? मैंने दोनों के मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिए. So अर्पित मिनिमम came as 189 and C max came as 187. अब what is the difference between Bimal and Ilan? तो यहां पे अगर 20 है तो ये 19 होगा. यहां पे अगर 13 है तो ये 19 होगा. सो व्हाट इज द टोटल? अब इनके टोटल निकाल लो आप. सो बिमल का टोटल कितना होगा? 88 प्लस 65 प्लस 19 प्लस 52. सो बिमल का टोटल आ रहा है 224. $88 plus 65 plus 19 plus 52, ये आया मेरा 224. ईलान का कितना आ रहा है? 60 30 78 19, 60 30 78 और 19 कितना हुआ ये? 90 plus 78 plus 19, ये आया 187. 24 minus 187, तो इनका गैप आया 37, which is given to me as option 2. Are you guys okay with this? I actually hate questions like this.
हर क्वेश्चन में बैठ के बार बार मुझे टेबल फिल करनी पड़ रही है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है ना अटेम्प्ट करना इज नॉट वेरी वाइज थिंग टू डू. एंड हाउ विल आई नो इन एडवांस? बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस मैक्सिमम पॉसिबल. इफ दिस हैपेंस कि अच्छा अगर ये केस हुआ तो क्या होगा. केस भी सेम नहीं है यार, कम से कम यही कर दो कि एक केस के ऊपर दो आंसर तो निकलने दो, बट नहीं, हर क्वेश्चन में अलग केस लेना है. करनी पड़ेगी मेहनत. लेट्स चेक. The players are ranked 1 to 5 on the basis of the total runs scored by them in the 4 matches, with the highest scorer getting rank 1. It is known that no two players scored the same number of runs. For how many players can the ranks be determined? Okay जी. भाई अब मुझे किसके बारे में पता है? Well, बिमल इज 224 इन दिस केस, और बिमल उससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा. ये दोनों जो लोग हैं ये दोनों 200 से तो कम ही रहेंगे. सी, वी हैव वेरी क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट अर्पित विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन चतुर. वी ऑल्सो नो बिमल वेदर इट इज 19 या कम से कम कितना होगा, ये 13. कोई सा भी मैं केस ले लूं 19 या 13, 6 का ही फर्क पड़ेगा. सो बिमल का कितना आया था? 224 आया था ना. तो 19 की जगह अगर 13 होता, सो बिमल विल ऑलवेज बी बिटवीन 213, सॉरी 6 कम, सो 218 टू 224. ये मेरे 180s के अंदर घूम रहे हैं. डी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? डी का तो टोटल स्कोर मुझे पता ही है, 72 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 56, 223. ओके, सो डी का टोटल है 223. तो इन दोनों के बारे में मैं श्योर नहीं हो सकता. कौन रह गया? ई. ई का आ रहा है 187. अगेन ई के बारे में भी मैं श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले केस में 187 आ जा रहा है, इसका भी 187 आ जा रहा है. इन दोनों का स्कोर कभी भी बराबर नहीं होगा. तो इन दोनों का स्कोर अगर कभी भी बराबर नहीं होगा तो इसका तो 187 मिनिमम है. So Elan will always be greater than or equal to 187. C. So E is always greater than equal to 187. What do I know about A and C? C is always less than or equal to 187. And A is always greater than equal to 189. तो इसके अंदर मेरे को टॉप 2 में आई नो 1 and 2 विल बी ऑक्यूपाइड बाय बी एंड डी. कौन होगा मुझे पता नहीं है. 224 हो सकता है तो ये ऊपर हो जाए, ये 223 हो जाए. इन केस ऑफ ई कितना हो सकता है? E can be 187 or 188. भाई E में मेरे पास में दो ही चॉइसेस हैं, या तो 19 ऐड होगा या 20 ऐड होगा. तो E will be 187 or 128. C can never be 187. So I know A will always be greater than E will always be greater than C. इन तीन के बारे में तो मुझे पता है. B और D मेरे टॉपर कौन होंगे उनके बारे में मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं. एंड इफ आई कैन नॉट गिव अ कंफर्मेशन अबाउट बी एंड डी, क्योंकि चलो डी का तो मेरे को टोटल पता है, बट डी का मैं जो है कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं कि कितना होगा. तो आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट बी एंड डी. दैट मीन्स आई कैन बी श्योर अबाउट ए, ई एंड सी. देख रहे हो, हर क्वेश्चन में अलग अलग मुझसे मेहनत करवाया रहा है, हर क्वेश्चन में मुझसे अलग अलग काम करवा रहा है. Finding out the range and then comparing. Obviously, not a question that you should attempt in the exam. Blue, additional information
मुझे लगा कि कहानी खत्म हुई, बट नहीं। अब मुझे बोला गया है कि एक फिफ्थ मैच और खेला गया है। ठीक है जी, जगह बना लूं मैं फिफ्थ मैच के लिए। रुक जाओ, कंट्रोल सेट करता हूं, देखता हूं क्या क्या। आई थिंक ये रेड वाला उड़ जाए, क्योंकि बाकी तो कंफर्मेशन मेरे पास में है ही। Okay. क्या हो रहा है मैच 5 में? द टोटल स्कोर ऑफ द मैच इज द सेम एज द टोटल ऑफ द थर्ड मैच। थर्ड मैच में कितना था मेरा टोटल? थर्ड मैच में मेरा टोटल था 240। ओके, Dino and Elan have the same score in this match. कितना है वो मुझे नहीं पता। Scores of Arpit and Chatur are 2-digit numbers. Okay, reverse for each other. If the final total for both Arpit and Dino is 263, which is the maximum possible for Arpit. अच्छा, तो अब मुझे अर्पित का मैक्सिमम पॉसिबल लेना है, तो मैं अर्पित का पहले वाले मैच 1 में मैक्सिमम पॉसिबल लूंगा 27, मैच 3 में मैं मैक्सिमम पॉसिबल लूंगा 19, एंड अर्पित का टोटल हो गया है 263, एंड दीनू का भी टोटल हो गया है 263। सो हाउ मच आर दे स्कोर्ड? तो अर्पित का 263 में से आप माइनस कर दो जो उसके स्कोर्स हैं, विच आर 27, 100, 19, 53, यानी कि अर्पित का स्कोर है यहां पे 64। अर्पित का अगर 64 है तो चतुर का रिवर्स्ड है, तो चतुर का हो गया 46। दीनू का कितना आएगा? भाई दीनू का 263 में से दीनू हैज ऑलरेडी स्कोर 223, तो 263 में से 223, तो दीनू का आ गया 40। एंड व्हाट एल्स डू आई नो? दीनू एंड इलान का सेम स्कोर है, तो इलान का भी आ गया 40। तो बिमल का कितना आएगा भाई? 64 और 46 110, 40 और 40 80, तो 190 गया, 190 गया, तो बिमल का आएगा 50। बिमल का आ गया 50। निकालना क्या है मुझे? रेशियो ऑफ बिमल एंड चतुर। सो 50/46 और 25/24 will be my final score. Sorry, 25/23 will be my final ratio. Are you guys okay with this? 25/23 coming out as the final ratio here. Definitely not something that you should attempt in the exam, but मैंने ये इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि मुझे प्रवीण ने भेजा था। देखो, इन क्वेश्चंस को पेपर में नहीं करना होता है, बट पेपर के बाहर करना होता है, ताकि ये पता लगे कि कौन सा पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक है, कौन से क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कहां अटक रहे हो, कहां नहीं अटक रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ट्राइंग क्वेश्चंस लाइक दिस, अदरवाइज तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर तुमको इंप्रूव करना है, अगर तुमको आगे बढ़ना है, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। सीखोगे कैसे? इन्हीं क्वेश्चन से तो सीखोगे। बहुत आसान होता है किसी के लिए बोल देना, अरे ये तो नहीं आएगा, छोड़ दो। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मैं खुद बोल देता हूं छोड़ दो, क्योंकि उनमें खाली आप केसेस बनाते जाते हो ब्लाइंडली, खाली मेहनत करनी होती है। यहां मेहनत नहीं थी, यहां मेहनत थी, बट सिर्फ मेहनत नहीं थी, यहां पे तुम्हें अकल भी लगानी थी। ऐसे क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जहां पे तुम्हें मेहनत भी है और अकल भी है।
और इन सब क्वेश्चंस के लिए सबसे बढ़िया जरिया होता है मॉक्स। हम लोगों ने अपने कोर्सेज के अंदर 2 फुल लेंथ मॉक्स शुरू किए हैं हर हफ्ते। वी आर ऑल्सो गिविंग 3 सेक्शनल टेस्ट पर वीक, और इन सब टेस्ट के लिए मतलब आपको सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, कंप्लीट एनालिसिस मिलता है, तो आपको प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होती है। दिस इज अवेलेबल इन बोथ आवर प्लस एज वेल एज आवर आइकॉनिक प्लान्स, एंड आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर एंड इम्प्रूव। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो आप हांडा कूपन कोड का इस्तेमाल करके 10% ऑफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक जल्दी हो गए, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि चारों सेट में निपटा दूंगा, बट क्लियरली चारों सेट अब हो जाने चाहिए इन द टाइम दिस इज लेफ्ट। दिस इज द 4th सेट, और ये सेट हमको भेजा था आशुतोष शर्मा ने। तो चलो शुरू करते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 12 मैनेजर्स, मुझे उनके नाम भी बने हैं। Cabins of these managers are numbered 1 to 12, not necessarily in the same order, मतलब सबका कुछ कुछ है। These cabins are on either side of the corridors. 1 through 6 in that order are on the left side. Okay. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है मेरे लेफ्ट में। 7 to 12 in that order on the right side. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये है मेरे राइट में। ठीक है जी। Cabin 1 is opposite to 7, हाँ ये मैंने पढ़ लिया था। 1 is opposite to 7, 2 is opposite to 8, ऐसे मैंने ये डायग्राम बनाया। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी ट्रिक होती है वो ये है कि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करो, और कुछ भी अगर आपको कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन कहीं नजर आती है तो सबसे पहले उसको यूज करो। इज देयर एनी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन दैट यू सी इन दिस? किसी भी में यश बोल रहा है 4th स्टेटमेंट, चमन्स केबिन नंबर इज 5। बहुत अच्छी बात है, तो डाल दिया जी मैंने यहां पे, चमन्स केबिन नंबर इज 5। अब और कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन? कौन सा सेंटेंस यूज करूं मैं? 6 सेंटेंस है। लतिका और टीना एडजेसेंट नहीं है, क्या होगा यार उससे? इतनी सारी पोजीशंस है, सामने आगे पीछे, तो 6 से तो अब मैं चालू नहीं कर सकता। विच स्टेटमेंट शुड आई टेक नेक्स्ट? बताना चाहोगे? सबको देखो, कारीगरी इस क्वेश्चन में यही है। 2 and 3, ओके। 2 बोलता है अनुभव एंड शिल्पी हैव अ कॉमन नेबर हुज केबिन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पैरिस। अगेन दिस इज कंप्लीटली रिलेटिव, सो प्रियंका आई डोंट थिंक यू शुड स्टार्ट विद दिस, बिकॉज जहां पे भी इंफॉर्मेशन रिलेटिव होती है ना, तो उनमें से मुझे किसी ना किसी का पहले फिक्स करना पड़ेगा, वो नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं इससे चालू नहीं करूंगा। 3 को देखता हूं। Cabins of Paris and Swati, which are at extreme ends, are diagonally opposite to each other, and the cabin number of one of them is a prime number. तो अब या तो 1 और 12 है, या 6 और 7 है, बट इन दोनों में से प्राइम एक होना चाहिए। ना तो 1 प्राइम है ना 12 प्राइम है। दैट मीन्स स्वाति एंड पारस वो इन पोजीशंस पे हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं स्वाति और पारस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करूंगा। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर स्वाति कहीं नजर आ जाए या पारस कहीं नजर आ जाए। इनमें तो नहीं आ रहा। अमन टीना यहां पे आ रहा है ना सेकंड में नजर। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट को यूज करूंगा। क्या बोलता है सेकंड स्टेटमेंट? अनुभव एंड शिल्पी हैव अ कॉमन नेबर। अच्छा, तो यानी कि अनुपम और शिल्पी के बीच में कोई एक आदमी है। एंड हुज केबिन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पारस केबिन। तो पारस अगर ऊपर देख रहा है तो उसके एक राइट में अनुभव में शिल्पी है और सेकंड राइट में
ये वाला बंदा है, बंदी है जो कि उनके बीच में है। तो मुझे पारस के राइट में लोग होने चाहिए। अगर मैं पारस को यहां बैठा देता हूं तो पारस इस साइड फेस करेगा, इस साइड फेस करेगा तो सबके सब उसके जो हैं राइट में आ रहे हैं, यहां पे इस साइड फेस करेगा तो सबके सब उसके राइट में आ रहे हैं यहां पे। बट जस्ट नेक्स्ट टू हिम शुड बी अनुभव और शिल्पी। तो अगर उसके जस्ट नेक्स्ट में मेरे को अनुभव और शिल्पी चाहिए तो पारस यहां नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट में तो चमन है। तो इससे मेरा बहुत फायदा हो गया। इससे मुझे ये पता पड़ गया कि पारस और स्वाति का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। पारस यहां पर है, स्वाति यहां पर है, ऑल्सो अनुभव और शिल्पी इन पोजीशंस में 8 और 10 पे। आई गाइस ओके विद दिस कि मैंने पारस और स्वाति की कहानी निकाल ली और अनुभव एंड शिल्पी के बीच में कोई एक आदमी है। कौन है वो आदमी मुझे नहीं पता, बट मैंने कम से कम ये तो निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा पारस, स्वाति, अनुभव, शिल्पी इनके बारे में कहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन है। द केबिन ऑफ अनुभव इज ऑपोजिट ऑफ जुबिन। तो यार अनुभव यहां पे है तो जुबिन यहां आ जाएगा, अनुभव यहां पे है तो जुबिन यहां आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। फिर नीरा जो कि वासव के ऑपोजिट में है वो जुबिन की नेबर होगी। तो मान लो जुबिन यहां पर है तो नीरा और वासव कहां हो सकते हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखो, मुझे इतना तो पता पड़ गया है कि जुबिन जो है वो इस साइड में होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। कहां होगा मुझे पता नहीं। अब it is not 100% that Anu is beside Paras. No, Rajdeep, it is not, because we are given that Anubhav and Shilpi have a common neighbor. तो अनुभव और शिल्पी के बीच वाला जो आदमी है वो पारस के दो राइट पे है। यहां पे अनुभव और शिल्पी में से कोई भी एक हो सकता है। अब देखो जुबिन दूसरी साइड में है, बट हमको ये गिवन है नीरा इज ऑपोजिट ऑफ वासव। अब नीरा और वासव कहां हो सकते हैं भाई? यहां पे स्वाति आ गई उसके साथ, तो नीरा और वासव 6, 12, 5, 11, 4, 10, 3, 9, 2, 8, 1, 7 सबके अंदर एक एक ऑक्यूपाई हो गया है। जो पोजीशन बची है नीरा और वासव के लिए वो सिर्फ और सिर्फ, कलर चेंज कर लेता हूं अब, 3 and 9 ही बची है और कोई पोजीशन नीरा और वासव के लिए बची ही नहीं है। अब जहां पे भी शिल्पी आएगी उसकी दूसरी पोजीशन पे अनु आएगा और अनु के ऑपोजिट में जुबिन आ जाएगा। अगर अनु यहां है, शिल्पी यहां है तो जुबिन यहां है। अगर शिल्पी यहां है तो अनु यहां है तो जुबिन यहां है। आई एम सॉरी, अनु यहां है तो अनु के ऑपोजिट में जुबिन हो गया। ठीक है, जब भी ये कंडीशन आएगी तब मैं कर लूंगा। आई थिंक अननेसेसरीली कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो अनुभव ऑपोजिट टू जुबिन, ये वाला पार्ट मेरे को अभी भी फिगर आउट करना है। लतिका एंड टीना आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। बहुत सारी पोजीशंस हैं यार लतिका और टीना के लिए। कौन सी कंडीशन रह गई फिर? पहले वाली, सम ऑफ केबिन नंबर्स ऑफ अमन एंड टीना इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अच्छा जी, तो स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर यानी कि मेरा टोटल क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 और 3, 4, 9, 16, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब the cabin numbers of the two managers who are immediately left of Aman and Tina are opposite of each other. तो बेसिकली अमन एंड टीना को ऑपोजिट साइड्स में होना पड़ेगा और टोटल को 9 या 16 या 4 होना पड़ेगा। क्या पॉसिबिलिटी है? आई थिंक
4 and 12 आर दी ओनली पॉसिबिलिटी? भाई एक और कंडीशन है ना कि इसके जो लेफ्ट में है एंड इसके जो लेफ्ट में है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए. सो दिस कंडीशन फॉर अमन एंड टीना is only happening in 4 and 16. अब अगर मुझे पता पड़ गया कि अमन एंड टीना यहां पे हैं तो अंशुल यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि अंशुल को तो अपने ऑपोजिट में जुबिन चाहिए था, विच मीन्स अंशुल यहीं पे होगा. अब मैं अंशुल के ऑपोजिट में जुबिन को डाल देता हूं. Are you guys okay with this? Then last condition, Latika and Tina are not adjacent to each other. Okay, मैं एक्चुअली अलग अलग कलर से ये केस बनाता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो. जुबिन का तो यहां होना पक्का है. अमन और टीना के लिए I'll make two cases. I'm making the first case in black. अमन यहां पर है तो टीना यहां पर है. टीना एंड लतिका आर नॉट टुगेदर, तो लतिका यहां नहीं आएगी, लतिका यहां आएगी. कौन रह गया? कौन रह गया? वास्तव हो गया, अनुभव हो गया, पारस, नीरा, स्वाति, शिल्पी, अमन. करण रह गया. सो करण विल कम हियर. सो दिस इज द केस दैट आई हैव फॉर्म्ड इन ब्लैक. लेट मी फॉर्म अनदर केस इन ग्रीन. ग्रीन में मैं टीना को यहां डाल रहा हूं. अगर टीना को मैं यहां डाल रहा हूं तो अमन यहां पे आ रहा है. अमन अगर यहां पे आ रहा है तो अब करण और लतिका में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. करण और लतिका यहां आ सकते हैं, करण और लतिका यहां आ सकते हैं. सो ग्रीन में देयर विल बी टू केसेस. Are you guys okay with all the cases that I have made here? ट्रिक इन क्वेश्चंस के अंदर यही होती है कि आप सही स्टेटमेंट को पकड़ें और फिर उस सही स्टेटमेंट से आगे जाएं, तभी you'll get to the answer or you will be able to get to the correct value. That's what you need to do in questions like these. चलो आगे चलते हैं. आई थिंक ये तो बन ही गया है. ओहो, क्वेश्चन में अभी और कहानी है. The question is based on the two statements. Cabin of Neera is to the immediate right of Tina. Neera हो सकता है. Cabin of Latika is opposite of Chaman. Latika is opposite of Chaman. ये भी हो सकता है. If statement 1 is true, then statement 2 is definitely true. Let's check. If 1 is true, that means if Neera is immediate right of Tina, that means if Neera is 3 and Tina is 4, in that case Latika is 11. क्या ये सही है? अगर टीना यहां पे आई तो लतिका 11 पे हो सकती है. दिस इज पॉसिबल. इज दिस डेफिनेटली ट्रू? नो. इफ स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स 2 इज नॉट ट्रू, यानी कि लतिका 11 पे नहीं है, यानी कि लतिका इज एट 1. इफ लतिका इज एट 1, then is Tina in 4? If Latika is at 1, Karan is here. Well, Tina can be at 4.
That is also possible. Not necessarily true because Tina can be at, see, in the first case, Latika could have been 11 or 1. In this case, Tina could be 4 or 12. Both are possible. If statement 2 is true, that means if 2 is true, that means Latika is at 11. If Latika is at 11, then Aman has to be 12. Then Tina has to be 4. And yes, then it is definitely true, which means statement number 3 is true. पहले वाले दोनों केसेस में पॉसिबल आया था, डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स चाहिए था, वो नहीं हो रहा था, पॉसिबल आ रहा था. तीसरे वाले केस में अगर लतिका 11 पे है तो गारंटीड अमन यहां पे होगा, तो गारंटीड टीना यहां पे होगी और टीना और नीरा आसपास होंगे. दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू, मेकिंग ऑप्शन 3 एज द आंसर. प्रिंस डेली नहीं होती हैं ये मैं हफ्ते में 1-2 बार लेने की कोशिश करता हूं. तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें ये अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कौन सी क्लास कब शेड्यूल्ड है, क्या प्लान है. नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द 2 मैनेजर्स बी एलोकेटेड कैबिन्स? 3 वेज हैं, ये तो मैंने देखे थे. ब्लैक का 1, ग्रीन के 2. Whose cabin is third to the left of Zubin? ये रहा Zubin, इधर देख रहा है. 1 to the left, 2 to the left, 3rd to the left. So this is Chaman. Is the cabin of Aman is exactly between Neera and Chaman? यानी कि ब्लैक वाला केस कंसिडर करना होगा अमन के लिए. अगर अमन यहां पे है तो टीना यहां पे है, करण यहां पे, लतिका यहां पे, सब परफेक्ट है. देन हु इज ऑपोजिट ऑफ टीना? तो टीना यहां पे है गारंटी. टीना के ऑपोजिट में इट विल बी स्वाति बिकॉज टीना इज गारंटीड एट 12. Aman is guaranteed at 4, then Tina is guaranteed at 12, and opposite to Tina, Swati will be at 6. Are you guys okay with this? Okay. Just a reminder, हर संडे को हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं. अगर आप एनरोल्ड हैं तो then you are just eligible to take the test. All that you need to do is just attempt it. However, if you're not enrolled, then you can use the coupon code HANDA to unlock the test. इसमें जो टॉपर्स होते हैं उनको पूरा 1 year का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है. And even the others who end up doing well, they get a significant scholarship on the same. So you guys can, use this. अनअकैडमी पे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे फीचर्स रहते हैं. उन फीचर्स में से एक फीचर आस्क अ डाउट का भी रहता है. कोई भी आपको डाउट आए उसका फोटो खींच के आप हमको भेजिए एंड वी विल आंसर इट एंड ईदर मी और समवन फ्रॉम आवर टीम विल आंसर इट फॉर यू. कोई भी कोर्स में आपको एनरोल करना है अनअकैडमी के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लस और आइकॉनिक. अगर आप कैट 22 की तैयारी कर रहे हैं देन आई वुड रिकमेंड द आइकॉनिक प्लान. उसके अंदर आप हांडा कूपन कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं. And I guess that's pretty much all that I have for today. कुछ भी आप प्रेपरेशन के बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए. कोई भी क्वेश्चन में अगर आप कभी भी अटकते हैं, मैं ये LRDI की क्लासेस लेता रहता हूं, तो आप वो मुझे hkfdoubt@gmail पे भेज सकते हैं. और आप चाहते हैं, जैसे कि प्रिंस बोल रहे सर ये डेली होगी क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर तुम लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए पॉजिटिव रहे तो जब क्लास खत्म होती है तब आप लोगों को फीडबैक का ऑप्शन मिलता है. उसके अंदर आप अपना फीडबैक पॉजिटिवली देंगे तो आई डेफिनेटली योर फीडबैक गेट्स इनकॉर्पोरेटेड एंड आई विल बी एबल टू टेक मोर क्लासेस. Someone said that they have a doubt regarding prep. Please, sure, go ahead. Tell me, how can I help you? प्रिंस, मैं तो मेरी मर्जी नहीं चलती है भाई, समझा करो. सबके ऊपर बॉस होता है, मेरे ऊपर भी है. सो आई डोंट रियली गेट टू डिसाइड दैट वे.
तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. मैं यूट्यूब पे भर्ती क्लासेस लेता हूँ. यूट्यूब पे आई टेक 1 or 2 क्लासेस एवरी डे. यूट्यूब पे कैट फंडा मेरे चैनल का नाम है. यू विल गेट द लिंक्स फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप. वहां पे मेरा फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहता है टुवर्ड्स क्वांट. श्रेया तुम कुछ पूछना चाह रही थी? मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एक बार और दे देता हूं. So this is the link for the Telegram group. I will try and give you the link for the YouTube channel as well. This is the link for the YouTube channel. I'm scoring around 97 in CL mocks, but that's only due to VRC and Quant. I'm not improving in DI-LR. तो देखो, अगर तुम्हारा VRC में 99.8 आ रहा है और क्वांट में तुम्हारा 95 आ रहा है, both of these are really good scores. तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट इसका ये मतलब नहीं है तुम प्रिपरेशन छोड़ दो. What you need to do is you need to stick to your preparation, whatever hours you are doing. LRDI तुम्हारा weak है, and LRDI is what you need to improve. So your goal should not be to get a 95 or a 99.8 in LRDI. LRDI में तुम अपना गोल बनाओ कि मुझे 90 परसेंटाइल लाना है ताकि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए. सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेरे को 90 परसेंटाइल चाहिए. 90 परसेंटाइल के लिए मुझे 2 सेट करने होंगे. शायद तुम अगर एक ही सेट कर पा रही हो तो वो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि तुम अगला जब भी कोई सेक्शनल टेस्ट दो या जब भी कोई मॉक टेस्ट दो उसमें तुम 15 मिनट लगाओ. 15 मिनट लगाओ सेलेक्ट करने में कि कौन सा सबसे आसान सेट है. मैं वही करूंगी. सो जस्ट डू द इजीएस्ट सेट फर्स्ट. वंस यू स्पेंड दैट 15 मिनट्स और फिगरिंग आउट विच वन इज द इजीएस्ट सेट. ऐसा पता है क्या होता है, लोग पहला सेट ट्राई करते हैं, नहीं होता है, छोड़ के फिर दूसरा करते हैं, फिर नहीं होता है, फिर तीसरा करते हैं. सो स्पेंड 40 मिनट्स हैं तुम्हारे पास में. तुम्हारा अभी एक सेट हो रहा है. मैं जो टेक्निक बोलूंगा हो सकता है उससे तुम्हारा एक हो या हो सकता है 2 हो जाए. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज स्पेंड 15 मिनट्स. घड़ी देख के बिना किसी जो है ना कि अरे मेरे को टाइम वेस्ट हो रहा है मत सोचो. ये रूल बनाओ कि मैं तो सबसे इजीएस्ट सेट ही करूंगी. एंड देन व्हाट यू डू इज आफ्टर दैट 15 मिनट्स यू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर सेट whichever one you thought was the easiest. कोई सेट तुम्हें देख के ही लगता है यार ये तो मुझसे ऐसे ही बन जाएगा, मत बनाओ उसे जब तक तुमने बाकी के सारे सेट्स को रिव्यू नहीं किया है. Attempt that particular set, even if you like it, even if you think it is easy, after you have gone through the others, and then you are making a conscious decision that yes, this is the easiest set. Once you have figured that out, and उस सेट को सॉल्व करने में तुम्हें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं. उसके बाद में जो तुम्हारे पास में टाइम बचा उसमें फिर तुम दूसरा सेट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. So what happens is once you spend that initial 15 minutes on the 5 sets which are there, you'll get an idea कि कौन से वाले सेट्स जो हैं वो relatively मुश्किल हैं या easy हैं. So you will be able to kind of make up a ranking. पेपर खत्म हो जाए उसके बाद में घर आओ, 2 घंटे तक उन 5 सेट्स को सॉल्व करो और उस 2 घंटे के अंदर अगेन ये एनालिसिस करो कि क्या तुमने सही सेट पेपर में सेलेक्ट किया था या नहीं. From now onwards, at least for the next 10 sectional tests or full length mock tests that you take, उन 10 के 10 में तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं. तुम्हारा गोल ये होना चाहिए did I select the easiest set or not. And once you get those 3 consecutive times, you have the confidence कि हाँ 3 बार मैंने consecutively easiest set select किया. अब उसके बाद में your next step should be कि 3 मॉक्स के अंदर मुझे 2 easiest set select करने कि कौन से 2 सबसे सिंपल थे. अटेम्प्ट पेपर में तुम उनको कर पाओ या नहीं कर पाओ इज डिफरेंट. नहीं फर्क पड़ता है, अरे क्या फायदा हुआ मेरे नंबर तो आए नहीं. तुम्हें नंबर एग्जाम में लाने, मॉक में नहीं लाने. तुम्हें अपने स्किल सेट को इंप्रूव करना है. And the skill set you are trying to improve here is selecting the right sets. So, for 3 consecutive papers, you need to select the easiest set. The next 3 consecutive papers, you need to select the 2 easiest sets. उसके बाद वाले जो होंगे ना, उसमें तुम ये अपना गोल बनाना कि अच्छा ये दोनों मुझे अटेम्प्ट भी करने हैं.
अगले 6 पेपर तक तो तुम अपना एक गोल रखो कि मेरे को एक ईजीएस्ट सेलेक्ट करना है या मेरे को 2 ईजीएस्ट सेलेक्ट करने हैं, और जितना बनेगा उतना मैं करूंगा. And I'm sure if you do this sort of strategy of 3 for the easiest, then 3 for the 2 easiest, and then the next 4 for attempt, you will see an improvement in your scores. Obviously, you need to put in, if you are doing so well in verbal and quant, you need to put in a hefty amount of time towards LRDI. क्योंकि अगर तुम्हारा overall 99 आ भी गया, क्या करोगी overall 99 ला के if you are not able to clear the sectional cutoffs? So you need to dedicate a lot of time to LRDI, at least in the days which are coming. I hope that helps, and I'm always available on email to take this discussion further. And on that note, I will end this class. I'll request all of you to please provide positive feedback at the end. The better feedback that I get, more such free classes I will be able to take on the platform. So that's pretty much it. Bye, Prince. Bye, Shreya. Bye, Yash. Thank you, everyone. Thanks, guys. And you can mail me on hkfdoubt@gmail.com for your doubts. Bye.